Hello dear children, this is Deepak Juneja here and you are at the YouTube channel English Kingdom. Today we are going to begin the poem. The name of the poem is Rain on the Roof and this poem is composed by Kotskinny. So no other season is more favorable than this rainy season to read this poem, because while this is raining outside, you may enjoy the poem and you may well understand the feelings of the poet also while you read this poem in rainy season. So I hope that many of you like this rainy season, and because it's a very good climate outside and rain always gives pleasure and enjoyment. So we are going to begin this poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? This pattering sound means rain falling sound. Pattering sound. Patter of soft rain means rain falling sound which falls on the roof and it creates a kind of noise. And when you are having the homes of tin shade, it creates a lot of noise. For some people it may be a kind of disturbance, while some other people are there who enjoy this particular sound, and that sound becomes the source of concentration also for them. तो जब स्काई डार्क क्लाउड से भर जाता है और रेन होने लग जाती है, उसके बाद में बारिश की जो बूंदें गिरती हैं उससे जो पैटरिंग साउंड होती है, रेन फॉलिंग जो साउंड होती है, वो कुछ लोगों के लिए इट मे बी ए मैटर ऑफ प्लेजर, कुछ के लिए खुशी की बात हो सकती है. इन सम पीपल से कुछ लोग ऐसा कहते हैं दैट इट क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन आल्सो, कि ये उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन का काम करती है. इट वर्क्स लाइक ए ललाबाई आल्सो, लोरी का भी काम करती है ये, यानी कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करती है. इट्स वर्क्स लाइक ए म्यूज़िक, इट वर्क्स लाइक ए मेलोडी की तरह काम करती है. वाइल सम पीपल कंप्लेन अबाउट इट एज ए डिस्टर्बेंस आल्सो, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि ये उनके लिए डिस्टर्बेंस है. सो वेरियस पीपल हैव वेरियस ओपिनियन, अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है. सम पीपल लाइक रेनी सीजन, कुछ को रेनी सीजन, नॉट आई वुड से सम पीपल, मेनी ऑफ द पीपल लाइक रेनी सीजन, अनेक लोगों को रेनी सीजन अच्छा लगता है. बट सम पीपल आर देयर हु डू नॉट लाइक रेनी सीजन, उनके अपने अलग अलग अपने कारण है. दे हैव देयर ओन रीजन्स. So what thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? This melody of nature, this refers to rain. ये जो melody of nature जो word है ये rain के लिए use किया गया है. Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो आपको ये poem को पढ़ के पता लगाना है कि कवि इस rain की आवाज़ को सुनकर किस तरह से concentrate करता है और किन किन चीज़ों को imagine करता है. तो let's go with the first stanza. फर्स्ट स्टैंजा से शुरुआत करते हैं. व्हेन द ह्यूमिड शेडोज़, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, फ्रेज ह्यूमिड शेडोज़, दिस रेफर्स टू क्लाउड्स, ये क्लाउड्स के लिए यूज़ किया गया है. होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर, होवर का मतलब होता है मूव या मूव अराउंड, जिसे कहते हैं मूव अराउंड, इधर उधर चक्कर लगाना. ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर, स्टारी स्फेयर, स्फेयर कहते हैं एरिया को, स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स, द एरिया फुल ऑफ स्टार्स. Here night sky is being talked of, यहाँ नाइट स्काई के बारे में बात की जा रही है. Why this is night sky? Because it is full of stars and stars can be easily seen. So when the humid shadows means heavy clouds which are full of water, hover means आते हैं, घूमते हैं, over all the starry sphere, इस पूरे आसमान में जो चारों तरफ से सितारों से भरा हुआ है उस पर घूमते हैं. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Darkness, it is already night time, so it is darkness is there. This darkness becomes melancholy, melancholy means full of sad, यानी ये darkness तो पहले से ही थी और ये फिर बाद में sad हो जाती है, बहुत और दुखी हो जाती है. It's full of grief, दुख से भर जाती है. क्यों भर जाती है? क्योंकि जो starry sphere है, starry sky है, that is hovered by humid clouds, उसको पूरी तरह से ह्यूमिड क्लाउड्स ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है. इट जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और फिर ये अपना दुख किसके रूप में व्यक्त करती है? रेनी टीयर्स के रूप में, बारिश के आंसुओं के रूप में. यानी हियर रेन हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ टीयर्स, जो रेनी टीयर्स, रेन को जो है रेनी टीयर्स बोला गया है. एंड जेंटली वीप्स मीन्स इट फॉल्स सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे गिरती है. तो यहाँ पर अगर आप इसको वापस से देखें इन 4 लाइन्स को, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज 4 लाइन्स? मीन्स व्हेन, यानी जब, ह्यूमिड शेडोज़ मीन्स डार्क क्लाउड्स, हैवी क्लाउड्स, होवर मीन्स आते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर मीन्स जो स्टार वाला स्काई है उसके ऊपर,
एंड द melancholy darkness, उस समय जो डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, वो और melancholy यानी दुखी हो जाता है या और गहरा हो जाता है. जेंटली वीप्स, और वो फिर डार्कनेस रोती है इन रेनी टीयर्स. किसके रूप में? रेनी टीयर्स के रूप में. सो हियर सम पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज this one, alliteration. The spelling of word alliteration is alliteration. alliteration. ये alliteration है. What is alliteration? In Hindi it is called अनुप्रास अलंकार. हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं. अनुप्रास अलंकार क्या होता है? when two initial sounds, same sounds occur word after word. यानी जब कुछ इनिशियल सेम साउंड्स बार बार अकर होती हैं, 2-3 वर्ड्स में एक साथ घटित होती हैं, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. यू कैन सी हियर एच साउंड, हियर आल्सो एच साउंड. इन द सेम वे इन द सेकेंड लाइन आल्सो दिस इज हैपनिंग. लुक एट दिस एस, स्टारी. लुक एट दिस एस अगेन, स्फेयर्स. दिस आल्सो इज क्रिएटिंग स साउंड एंड दिस आल्सो इज क्रिएटिंग स साउंड. स्टारी स्फेयर्स. दैट्स वाई दिस इज आल्सो एलिट्रेशन. द स्पेलिंग ऑफ एलिट्रेशन इज ALLITERATION. So alliteration is the repetition of consonant sounds happening one after another word. यानी एक के बाद दूसरे शब्द में जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है उसे ही हम एलिट्रेशन कहते हैं. जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें एच साउंड रिपीट हुई, इसमें एस साउंड रिपीट हुई. तो इसमें साउंड का कंटिन्यूस होना भी ज़रूरी नहीं. जैसे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दिस वर्ड शैडोज इज आल्सो देयर. सो ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि तुरंत बाद में होना चाहिए. पूरी लाइन में तो कहीं ना कहीं इस तरह के अगर आपको कॉमन ऐसे साउंड्स मिलती हैं तो वो एलिट्रेशन हो सकता है. बट द कंडीशन इज़ दैट इट शुड बी द इनिशियल साउंड, यानी शुरुआत की साउंड ही होना चाहिए. ये पीछे का साउंड नहीं हो सकता, ये सिर्फ इनिशियल साउंड ही होना चाहिए. मेलनकली, डार्कनेस, जेंटली वीप्स. अब ये यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. डार्कनेस इज़ एब्स्ट्रैक्ट, डार्कनेस इज़ नॉन लिविंग, और इसके साथ में ये लिविंग वाली चीज़ एसोशिएट, लिविंग वाला एक्शन एसोशिएट किया जाता है. तो ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन बन गया. जो डार्कनेस है वो निर्जीव चीज़ है, तो निर्जीव चीज़ को अगर आप सजीव के जैसा एक्शन करता हुआ बताते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन बन जाता है. ये मानवीकरण कहते हैं इसे हिंदी में. तो 2 पोएटिक डिवाइस हो गए. एक तो हुआ एलिट्रेशन और दूसरा हुआ आपके पर्सोनिफिकेशन. द स्पेलिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज PERSONIFICATION. ये पर्सोनिफाई से बना, पर्सोनिफिकेशन. सो अब तीसरा इसमें एक और पोएटिक डिवाइस है, वो है ह्यूमिड शैडोज़. ये ह्यूमिड शैडोज़ जो वर्ड है ये क्लाउड्स के लिए यूज़ किया गया है, तो क्लाउड्स को ह्यूमिड शैडोज़ बोला गया है. और तो इस तरह से आपके पास में 3 पोएटिक डिवाइसेस हो गए इस पर्टिकुलर 4 लाइन्स में. चलिए आगे चलते हैं. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. Means here rainy tears are falling, darkness is weeping, but this weeping of darkness becomes a kind of source of pleasure for the poet. लेकिन ये जो डार्कनेस का दुख है, डार्कनेस का जो रोना है, ये राइटर के लिए, पोएट के लिए तो खुशी का सोर्स बन जाता है. बिकॉज इट इज़ रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल हो रहा है. ब्लिस कहते हैं एक्सट्रीम प्लेजर, कि ऐसे मौसम में क्या एक्सट्रीम प्लेजर मिलता है. टू प्रेस द पिलो, कि आप तकिए को अपनी गर्दन के नीचे या तकिए को अपने सिर के नीचे दबाकर, अपनी शोल्डर के नीचे दबाकर, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, अपने कॉटेज में, कॉटेज कहते हैं मकान को, जनरली ये रेफ़र करता है जो वीकेंड टाइप के जो बंगले होते हैं उनको रेफ़र करता है. चैम्बर बेड, उस बेड में आप लेटे हुए हों, पिलो को आपने दबा रखा हो. अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर से here again you can see the alliteration is there, P sound, and again the P sound is there, and you can see the words are not continue. Again the is there, yet it is alliteration there. Cottage chamber bed. Now look at this particular line. Here it is not the alliteration. आप ये सोच रहे होंगे कि पहली लाइन में ये C लिखा हुआ है, ये भी C लिखा हुआ है, तो इसका मतलब alliteration हो गया. No, it's not, because if you see this sound, this is sounding like C, sir. But this is not sounding like sir. This is these two letters altogether are being pronounced ch, sir, ch. So this is not alliteration. You should remember that one. It is the repetition of initial consonant sounds. It is not the repetition of initial consonant letters.
ये किसी कॉन्सोनेंट लेटर्स का रेपिटेशन नहीं है बल्कि साउंड का रेपिटेशन। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, तो कितना अच्छा और कितना परम आनंद मिलता है कि आपने तकिया अपने शरीर के नीचे दबा रखा और आप लेटे हुए हों। लाई लिसनिंग, लाई, ये अगेन एलिट्रेशन, दिस इज एलिट्रेशन अगेन, एल साउंड एंड दिस अगेन इज एल साउंड, so this is alliteration again। lie listening to the patter, patter means falling sound, कि आप लेट जाएं और falling sound सुने of the soft rain, धीमे धीमे चलने वाली बारिश की, जो ओवरहेड मीन्स आपके सिर के ऊपर जो छत है उस छत पर गिरती हुई आपको सुनाई देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टैंजा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। एवरी टिंकल, टिंकल एक टिंकलिंग साउंड होती है, इसको हम बोलते हैं, इसमें भी एक पोइटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है, जिसमें वर्ड जो होता है उस वर्ड की जो साउंड है वो उसके मीनिंग को कन्वे करती है। जैसे एक साउंड होती है बैंग, एक होता है हिस, तो ये जैसे स्नेक इज हिसिंग, द डोर बैंग्ड, ये ओनोमेटोपोइया के एग्जाम्पल है। तो टिंकल एक म्यूजिकल वर्ड है, टिंकल साउंड। तो एवरी टिंकल मीन्स एवरी साउंड ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स कहते हैं जो ऊपर प्लेट्स लगी हुई होती हैं छत के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ केलू लगे हुए होते हैं, उनको भी शिंगल्स बोला जाता है। हैज़ एन एको इन द हार्ट, तो हर आवाज़ जो शिंगल पर क्रिएट होती है वो हार्ट उसको एको करता है। एको करने का मतलब लाइक करता है, उसे दोबारा बार बार वही हार्ट के थ्रू वो बात सुनाई देती है। मीन्स द पोएट एन्जॉयज दैट साउंड, tinkling sound, every tinkling sound falling on the shingles, he enjoys that. And 1,000 dreamy fancies into busy being start. Look at this one. Again, this is alliteration is there. Busy, being, this is again alliteration there. And 1,000 dreamy fancies means 1,000 dreams start to come. और हजारों सपने जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आना। दिस मीन्स यहाँ पर दोनों लाइंस का मतलब ये है कि जैसे ही वो शिंगलिंग जो टिंकलिंग साउंड होती है जो शिंगल पर गिरती हुई वो उसे सुनाई देती है बार बार, तो उसके बाद में उसके 1,000 ड्रीम्स स्टार्ट शुरू हो जाते हैं, यानी आना शुरू हो जाते हैं 1,000 ड्रीम्स। एंड 1,000 रिकलेक्शंस मीन्स प्रीवियस मेमोरीज, पुरानी यादें, हज़ारों प्रीवियस यादें। वीव देयर एयर थ्रेड्स, एयर थ्रेड्स मीन्स हवा में इमेज के रूप में सामने आती हैं। एयर हवा में इमेज के रूप में सामने आती। वीव मीन्स बुनना या बनाना, टू मेक, टू क्रिएट। इनटू वूफ मीन्स, वूफ ये रेफर्स टू माइंड, वैसे ये लूम को रेफर करता है लेकिन यहाँ इसे माइंड के रूप में यूज़ किया गया, माइंड को सिम्बोलाइज करता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। सो व्हाट इन द सेकेंड स्टेंजा ही वांट्स टू टेल, पोएट क्या बोलना चाहता है सेकेंड स्टेंजा में, कि हर मतलब शिंगल्स पे गिरती हुई हर टिंकलिंग साउंड के साथ में उसका हार्ट इको करता है और उसे हज़ारों सपने आते हैं, हज़ारों उसके रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज क्रिएट होती हैं। व्यू मीन्स क्रिएट होती हैं, इनटू एयर थ्रेड्स मीन्स इमेजेस के रूप में, इनटू वूफ मीन्स उसके माइंड में, एज ही लिसन्स टू द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। एंड थर्ड स्टेंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। और जब ये इस तरह के जब उसके रिकलेक्शंस और ड्रीम्स उसके आते हैं, उसी समय उसके मेमोरी में हिज मदर आल्सो कम्स, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन मीन्स प्रीवियस ईयर्स, जैसे वो पिछले लास्ट के ईयर्स में आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, लुक एट द वर्ड डार्लिंग ड्रीमर्स, दिस डी साउंड, अगेन डी साउंड, दिस इज एलिट्रेशन देयर। टू रिगार्ड मीन्स टू लव द डार्लिंग ड्रीमर्स। हु आर दीज डार्लिंग ड्रीमर्स? इट रेफर्स टू द पोएट ऑफ कोर्स। As she left them till the dawn. Air means before she left them till the dawn. Dawn means early in the morning. जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक उसकी मदर उसकी मेमोरी में रहती है, उसे प्यार करती है। Regard means to love him. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Fond look means dear look. I enjoys her dear look on me as I list to this refrain. refrain का मतलब होता है repeated noise, जब मैं लगातार ये repeated आवाज़ सुनता रहता हूँ, which is played upon the shingles, जो कि shingles पर सुनाई देती है,
tinkling sound by the patter of rain, rain के fall के कारण. List का मतलब होता है listen, as I listen to this refrain. ये list पुराना वर्ड है listen के लिए, आप इसे अभी के रेफरेंस में यूज़ नहीं कर सकते. This is old word. As I list means as I listen to this refrain. Refrain means repetition, repetitive things which is played upon the shingles by the patter of rain. So what happens in the third stanza? In third stanza he says that in my memory my mother comes, and as she used to come previous years also, this tells us that this is nothing new for him. Actually he is experiencing that kind of thing for a long time. And what does his mother do? She comes to his dreams and she loves the darling dreamers. She gives them love, and till the morning time she remains with the poet, and after that she leaves from there, and he enjoys, or he feels that fond look on the face, and he listens to that refrain repetition which is played upon the shingles by the patter of the rain. So this was the poem. I hope you understand that one. If you have any doubts, please put your doubts on the comment section. Thank you.